ठीक है, तो हम पूरा कवर करेंगे, डोंट वरी। आपको जो भी नहीं समझ में आए तो मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। Okay, so let us start our session. So we seen about what is the testing. Okay, so testing is nothing but what? To test the develop application whether it is working as per the client requirement or not. Okay, and there are the two types of the testing. What are they? Structural or white box testing, and next one is functional or black box testing. Okay, so we tester always do the functional testing. Okay, structural and white box testing generally who will do? Developer. Means who will do? Those who have the knowledge of internal logic code. Okay, जिनको internal logic पता है, code पता है, okay, they will go for structural or white box testing. Okay, so अभी इसमें levels कौन से हैं? What are the levels are involved in the white box or structural testing? कौन से levels है? What are the levels are available? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, And सिस्टम टेस्टिंग। system testings. Okay, these are the levels are involved. Okay, so जो भी मैं बता रहा हूँ you can go through the Google and you can check out here. Okay, अब मैं check करता हूँ यहाँ पे कि what are the levels of unit test, sorry, levels of white box testing. Okay, so that is everything is universal. Okay, so जैसे white box testing मैंने बताया था कि white box design techniques, what are the design techniques are include control flow, data flow, ये है ना design techniques। और अभी हम देखते हैं कि levels, what are the different levels? Okay, levels are involved, levels involved into the white box testing. So just you can click on the images. Okay, so you can check here different images, the common thing you will get here. Okay, unit testing, okay, integration testing, right? So then I have some different types also. Okay, you can check here unit testing, integration testing, and system testing. These are the three some levels. Okay, that levels are involved: unit testing, integration testing, and system testing. Okay, that is very important. So these are the part, मीन्स ये लेवल्स होते यूज होते हैं कहाँ पे? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और ये सब यूनिवर्सल, ये हम कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हम ये मैनुअल टेस्टिंग ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपके सब ये कवर हो जाएंगे, तो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो कैसे वर्क कर रहे हैं हम, तो हम कौन से क्या क्या वर्क कर रहे हैं। ओके, सो लेवल्स। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होता है। ओके, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो कैसे कैसे करेंगे डिटेल्स में जो है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, जस्ट हम वो भी सिर्फ जस्ट ओवरव्यू। ओके, जस्ट वी आर टेकिंग द सम ओवरव्यू। ओके, यूनिट टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज नोन एज स्ट्रक्चरल, बिकॉज क्या है, ये कोड है, और कोड में क्या रहता है? लूप रहता है, कंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं। ओके, एंड what is meant by the unit testing? Unit testing, it is used to test the मॉड्यूल विद इन द मॉड्यूल। ओके, जो डेवलपर है वो विद इन द मॉड्यूल उसमें चेक करेगा, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके, छोटा सा पार्ट चेक करना कोड, वेदर इट इज वर्किंग एज पर द मीन्स वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, वर्किंग और नॉट। Okay, so white box testing is to check those who will do the white box testing, those know the internal logic. Okay, those having the knowledge of the internal, okay, internal logic जिनको पता है वो white box testing कर सकते हैं। Okay, then we can say that is unit testing and component testing are belongs to the white box testing, and it is also known as the clear box testing, open box testing, glass box testing। कभी कभी ऐसे भी वर्ड इंटरव्यूअर यूज करते हैं, व्हाट इज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो हम एक पार्ट बना के रख देंगे black box testing, and second part you can create as a white box testing। And for the black white box testing, what are the different terms can use? Then you can write there: clear box testing, open box testing, glass box testing, and transparent box testing. Okay, code based testing, structural testing, you can make the two blocks also in your notes. Okay, then here the black box testing, what is called, then we are going to see in the
लेटर। ओके, जो भी हम आएंगे देखेंगे उसमें आ जाएगा। सो वाइट बॉक्स डिज़ाइन टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक? दैट इज नो स्ट्रक्चर, अभी कंट्रोल फ्लो, कोडिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो कंट्रोल फ्लो रहता है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा, ब्रांच कोडिंग, ओके, एवरीथिंग। Then what are the levels are applicables? Different levels are applicable. That is what unit testing, then integration testing and system testing. So generally they will do the developer, but sometimes tester also involved in this testing. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन में और सिस्टम टेस्टिंग में। बट टेस्टर जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो कोड नहीं चेक करते, ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ कोड टेस्ट करेंगे। ओके, और डेवलपर जब टेस्ट करेंगे तो विथ हैविंग द नॉलेज ऑफ कोड टेस्ट करेंगे। यूनिट टेस्टिंग टेस्ट करना है तो क्या है कि इन द विद इन द यूनिट, अब ये कोड है, ये भी कोड है, डेवलप ये इस डेवलपर ने ये लिखा, दूसरे डेवलपर ने ये लिखा, तो इस कोड में छोटा सा एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट के लिए जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो है, तो ये चेक करेगा यहाँ पे। तो डेवलपर चेक करेंगे तो क्या चेक करेगा? वो कोड चेक करेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। टेस्टर चेक करेगा तो क्या चेक करेगा कि वही मॉड्यूल डिज़ाइन हुआ है कि नहीं जो कोड लिखा है ना, जो जो जिसका कोड है वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो जनरली तो एज पर डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो ऑल दिस टू मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट, है क्या नहीं? इंटीग्रेट हुए कि नहीं, जो भी हम मॉड्यूल्स है, जो ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट, एक के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं, यहाँ से हम जब डेटा सेंड करें यहाँ पे जा रहा है कि नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन में एंटर करते हैं डेटा और डेटा डेटाबेस में चला जाता है। उसके बाद हम इन वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डेट ऑफ बर्थ या नाम लिखा था वही हमारा नाम दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो उसमें क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल हो गया, लॉगिन का एक मॉड्यूल हो गया, डेटाबेस का भी हो गया, तीन मॉड्यूल। तो सारे अगर इंटीग्रेटेड है कि नहीं, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में डेटा फ्लो कौन चेक करेगा? जिन कोडर्स है, जिनको कोडिंग का नॉलेज है, वो कोडिंग के हिसाब से टेस्ट करेगा। और एज अ डेवलपर कैसे हिसाब से टेस्ट करेगा कि जस्ट हमने इसमें डेटा डाला वो इधर गया कि नहीं, और इसका फ्लो उधर आया कि नहीं, उसके बाद और वापस आया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन किया, डेटाबेस में डेटा गया, उसके बाद और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और उसके बाद और होम पेज ओपन हुआ कि नहीं। सो दैट इज फ्लो। ओके, सो विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग, if if anyone is doing without knowledge of coding, that is means a tester. Okay, so that tester are also involved here. Okay, integration testing, integrated all the modules or not. Then system testing is known the end to end system, end to end testing. So that is entire everything will be tested. That is a security testing, performance testing, okay, UI testing, GUI testing, ये हम आगे देखेंगे, don't worry. Okay, so these are the different levels are used in the white box testing. Level applicable. So what are the levels are applicable? जैसे भी मैं और एक चेक करता हूँ, levels of applicable, applicable levels, applicable levels of white box testing. Okay, so you can check here unit testing, integration testing, and system testing levels of the software testing through traditional tester. Okay, so tended to think of the white box testing being done at a unit level. Okay, ठीक है, so main three white box testing levels, right? So you can check here the image, you can go through any task, कहाँ पे भी देखो आपको यही मिलेगा, ठीक है, कितना भी ढूंढो तो भी। ओके, सो दैट इज टोटली यूनिवर्सल, सो इट इज एक्सेप्टेबल। इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सब मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कंपलसरी, दैट इज अ बेसिक थिंग, बेसिक नॉलेज। ओके, मतलब अब टेस्टर को भी ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं क्या? नहीं, जस्ट यू हैव टू नो द नॉलेज अबाउट व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये पूछेंगे। ओके, मतलब आपने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किया कि नहीं किया ये पूछेंगे, हम बोलने का नहीं किया देन व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये पूछेंगे। ओके, सो हम बता देंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ओके, सो दोज हुज हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंटरनल लॉजिक एंड कोडिंग, दे विल डू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जनरली डेवलपर डू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देन आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द लेवल्स आर इन्वॉल्व इन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो आप उनको यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, दीज आर द लेवल्स आर इन्वॉल्व इन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऐसे बताना। आपने किया है क्या, तो नहीं बोलने का। ओके, अगर हाँ बोलेंगे तो और क्वेश्चंस बढ़ेंगे,
तो इस लेवल पे ना बोलना है, ठीक है। जब ऑटोमेशन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वाइट ब्लैक बॉक्स पे, लेकिन ये फंडामेंटल्स है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पूछेंगे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, या फिर फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग। एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन बाय द टेस्टर, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। ओके, सो आल्सो टेस्टर आल्सो इन्वॉल्व इन हियर, ओके। ये टेस्टर भी कभी कभी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, बट विदाउट डोंट हैविंग द नॉलेज ऑफ द कोड। कोड का नॉलेज का यूज नहीं करते, वो वर्क कर सकते, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, ये चीज़ आपको जब हम वर्क करेंगे ना एज अ मैनुअल टेस्टर, टेस्ट करते समय, तो आपको उस टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, सो इंटरनल सिस्टम डिजाइन इज नॉट कंसिडर इन दिस टाइप सिस्टम, ओके। जो इंटर इनपुट दिए है, कोड दिया है, वो हम इन्वॉल्व नहीं होते कोडिंग में। ओके, कोड कैसा लिखा है, लॉजिक कैसा लिखा है, उसके हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है एप्लीकेशन का, जो फॉर्म डिजाइन होके आ रहा है, जो एप्लीकेशन आ रहा है, उसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, टेस्ट करेंगे, फंक्शनल प्रॉपर रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। दैट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Okay, we are not in the white box. Okay, white box there is a code, in a black box there is a not code. Okay, so then we are going to test based on the requirement and functionality. Okay, so what is testing? Test the develop application whether it is working as per the requirement or not. Okay, so here based on the requirement, suppose टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड की, उसकी मिनिमम 8 चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर चाहिए, है ना, ये हमको चेक करना है। तो ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की, कि मिनिमम 8 होना और मैक्स 16 होना, ऐसा ही आप रखिए। सो दैट्स फॉर द रिक्वायरमेंट, यू आर चेकिंग दैट वन। अगर 8 के नीचे अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज मीन इट इज द बग। सो दैट वी कैन गिव द सम इनपुट केसेस, okay, then application process that one and then give the output. Okay, so we provide some input, then application process and give the output. And what is application is written, the code, that is doesn't matter for the testers. Okay, हमको टेस्टर से कोई लेना देना नहीं है, कोड है क्या नहीं। सो बिकॉज दिस कोड इज डन बाय टेस्टिंग बाय द डेवलपर। जब भी डेवलपर, जैसे यूनिट टेस्ट मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड जिसने लिखा है छोटा सा मॉड्यूल के लिए, वो बिफोर सेंडिंग टू द क्यूए टीम इट विल एग्जीक्यूट वंस, एक बार वो एग्जीक्यूट करके देखता है कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। सो हु विल डू, जनरली डेवलपर विल डू। तो ये जो डेवलप करके, क्योंकि एक एप्लीकेशन में बहुत सारे डेवलपर रह सकते हैं, है ना, मोर देन 2 4 डेवलपर, दे डेवलप दैट वन एंड देन मर्ज एंड देन द बिल्ड विल बी रेडी। ओके, बिल्ड बोलते हैं उसको। तो उसके वर्जन्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स आते हैं, बिल्ड 1, बिल्ड, देन वर्जन 001। ओके, सो दिस इज बिल्ड 1। सो जैसे हम बिल्ड 1 आगे हम चेक करेंगे सारे लिंक्स प्रॉपर वर्क करे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसका मतलब जो बिल्ड आया है तो सारे डेवलपमेंट में वर्क किया है और वो कोडिंग बनाया है और मर्ज करके हमको दे दिया है, और हमको सिर्फ आउटपुट दिख रहा है और उसको हम चेक कर रहे हैं इनपुट देके। ओके, सो एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं, हम चेक कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। सो दैट इज विच इज डन बाय द कम्स अंडर द ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ओके, वाइट बॉक्स अप्रोच में जाएंगे तो हम पूरा कोड को स्कैन करते हैं, ब्लैक बॉक्स अप्रोच में जाएंगे तो हम सिर्फ फंक्शनलिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करते हैं। ओके, सो रादर दैन द यूनिट टेस्टिंग, the remaining testing types belongs to the black box testing. Okay, now don't get any more confusion again, ठीक है। So rather than the unit testing, अब मैं आपको बताता इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग्स। ओके, System. या सो दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो हर टाइम जरूरी नहीं कि डेवलपर ही करे। सो दो हैविंग द नॉलेज, सो सिस्टम टेस्टिंग मतलब जो सिस्टम है हमारी प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, ये भी ओके, दैट बिलोंग्स टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आल्सो, ठीक है। तो लेवल्स, इसको हम
वाइट बॉक्स टेस्टिंग को सिर्फ लेवल कहेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ white box testing? That is unit testing, integration and system. These are the levels. Unit testing is belongs to the white box testing. Okay, developer will do. Then sometimes integration and system that belongs to the black box testing. ठीक है, सो इस टाइप में भी आते हैं, बिलोंग्स टू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, सो लेवल्स जो है वो ये है. ओके, वो ये भी कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स? तो कौन से टेक्निक्स होते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं ये डिज़ाइन करना है तो. व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? ओके, so different techniques involved in the white box testing, that is compound statement, branching, loops, है ना, statement missing, ये सब कुछ आते हैं. So black box testing में कौन से techniques आते हैं? That is equivalence partitioning. Okay, equivalence partitioning. Then boundary value analysis. Okay, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि minimum character, maximum character, that is boundary value analysis. Then cause effect graphing. Okay, सो इक्वेलेंस पार्टीशनिंग, जैसे हम देखते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्वेलेंट पार्टीशनिंग मतलब जस्ट व्हाट आर द, जैसे अब एक पेज है, पेज में कैसे पार्टीशन हुए हैं. ओके, एंड यूज़र नेम पासवर्ड फिल कैसे एडजस्ट किए हैं, दैट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. एवरीथिंग ओके, जीयूआई एवरीथिंग उसमें आ जाएगा. देन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड कॉज इफेक्ट. अब कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, ओके, द रूट कॉज एनालिसिस देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म. तो ये टेक्निक्स होते हैं. तो कॉज इफेक्ट, तो जो इफेक्ट आ रहा है मतलब जो भी इशू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो उसके रूट में जाने का, दैट इज अ कॉज व्हाई इट इज इशू इज कमिंग. ओके, सो अगेन देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हेन वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, देन अगेन दिस टर्म्स विल बी एग्जीक्यूट एंड दिस टर्म्स आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, सो इसमें ये ध्यान दीजिए कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो ये इंटरव्यू के टाइम पे कभी भी ये वर्ड यूज़ कर लेने का कि अभी हम पूछेंगे कि बाय डूइंग द फंक्शनल टेस्टिंग विच इज द डिफरेंट टेक्निक्स यू हैव वर्क, सो यू कैन से दैट इज अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. ओके, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपको ये बोलना ही पड़ेगा, ये मोस्ट पॉपुलर है. तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब फंक्शनलिटी कैसे वर्क करते हैं हम. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सो दैट इज रिक्वायर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, 20 या 12 वट एवर एज पर द रिक्वायरमेंट. तो इसमें टेस्ट कैसे करेंगे कि मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर चाहिए. तो उसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. तो हम टेक्निक हमें कैसे यूज़ करेंगे कि 7-1 हो रहा होगा, सॉरी 8-1 हो रहा होगा. ओके, और 12+1 हो रहा होगा, तो ये हम फेल करेंगे, है ना. तो हम ऐसे ही कंडीशन लिखेंगे. ये जो हमने अभी टेक्निक सोची है इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. ठीक है, ये हमने सोचा जो है ना इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. तो ये एक टेक्निक होगी डिजाइनिंग की कि हम ऐसे टेस्ट केस बना सकते हैं. ओके, सो लाइक दिस वे. सो इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, जैसे यूज़र नेम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इसमें हम कैसे कैसे टेस्ट केसेस बना सकते हैं. सो दीज आर द टेक्निक्स. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स? You know the white box testing, those who know the internal logic of code. Okay, जो उनको कोड पता है, डेवलपर है मतलब वो कोड है उनको पूरे इसमें जो कोडिंग की है पूरे सॉफ्टवेयर बनाने में, वो उनको पता है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखा है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखने वगैरह तो हर एक कोड को टेस्ट किया. जैसे जूनियर कोड लिखता है, ओके, बहुत सारे जूनियर्स रहते हैं, तो उसको रिव्यू कौन करते हैं? सीनियर्स रिव्यू करते हैं, है ना. जूनियर कोड लिखते हैं और उसके बाद जैसे आज का मैंने वर्क किया जूनियर ने, तो 1 आवर सीनियर है उसको, जैसे लॉग आउट के पहले वो सीनियर है, उनको उनके जो सीनियर्स रहते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं कोड को, देन उसको एक्सेप्ट करते हैं. ऐसे बहुत सारे कोड लिखते हो, फिर उसको मर्ज करके. तो ये जो टेस्टिंग की है, अभी सीनियर को कुछ इशू फाउंड हो गया तो बता देंगे. अब सीनियर ने भी जो रिव्यू किया है तो उसको इशू मिल गया, वो उसने भी समझ जाओ कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग की है ना, कुछ इशू फाउंड हुआ है तो चेक किया, then we'll get the output like this way. But in the black box testing means functional testing, functional analysis. Okay, we are going to check boundary value analysis. What are the techniques? Boundary value analysis. Okay, तो इसमें हम चेक करते हैं functionality and as per working as per the requirement or not.
एज पर द रिक्वायरमेंट, हमको उसमें कोड में क्या है उससे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोड। देन व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो ये वर्ड हमेशा आते रहेंगे कि एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो टेस्टिंग कब स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ द टेस्टिंग। इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, जब हम प्लान्स रहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने पड़ते हैं पहले, टेस्टिंग करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं, वो क्रिएट होने के बाद हम वहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज़ द एंट्री क्राइटेरिया, ओके। देन एग्जिट क्राइटेरिया, सब हमारे पास रिपोर्ट आ गई, एज पर द सिस्टम वर्क कर रही है, जितने भी हमने टेस्ट केस निकाले उसके हिसाब से अगर कुछ भी बग नहीं और पूरे बग्स फिक्स हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं टेस्टिंग को, दैट इज एग्जिट क्राइटेरिया। तो सो द क्राइटेरिया फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, सो एज पर द डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया। अभी डेफिनेशंस में तो हमको पता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड विच इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, design implementation, item being tested is not known to the tester, okay, it's not known to the tester, that is very important, okay। जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितना कोड यूज हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ है, डिजाइन इम्प्लीमेंट हुई है, दैट इज नॉट नोन टू द टेस्टर, ओके। हमको कोड लॉजिक ये कुछ नहीं पता है, उसको बोलते हैं कि वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कोड नहीं पता है, ठीक है। बट कोड नहीं पता है तो हम क्या है, फंक्शनलिटी पता है हमको कि वेदर इट इज वर्किंग एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉट, ओके। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या, ये सब को पता है, ओके। सो व्हाट एवर द बाय डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, दे व्हाट आर द मेथड्स आर यूज, व्हाट आर द इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिजाइन दे आर इम्प्लीमेंटेड, ओके, कोड हाउ दे आर रिटर्न, so that everything is available, okay, that test that's known to the tester, ओके। सो अगर वो टेस्टर को पता है तो उसको हम बोलेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और जनरली ये किसको पता रहता है, डेवलपर को पता रहता है, ओके। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग मीन्स दोज हु नो द इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड, जो वो टेस्ट कर रहा है इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड, ओके, उनको पता है, उस टेस्टर को पता है, तो वो बोलेंगे कि हम वो डेवलपर वाला टेस्टर है वो, ठीक है। और ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो सिर्फ टेस्टर को पता है, ओके, डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द कोडिंग। देन applicable levels, applicable to, what are the levels, okay, mainly applicable to the higher level of testing, that is what acceptance testing and system testing। so black box testing में system testing भी आती है, okay। so higher level of acceptance testing, अभी acceptance testing मतलब कि ये जो एंड उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा, ओके। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब प्रोडक्शन के लिए सिस्टम रेडी है और उसको भेज दिया है सिर्फ यूज़र उसको टेस्ट करने के लिए, लाइक अ बीटा वर्जन। सो जियो मार्ट, ओके, ये अभी जियो मार्ट का जो चल रहा है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चल रही है, ओके। एंड यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है, देखो जब भी यहाँ पे बीटा वर्जन लिख के रहेगा तो समझ जाओ कि ये इट्स नॉट कंप्लीटेड, ओके, मतलब समथिंग, जो भी बीटा जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, समझ आना कि जो प्रोजेक्ट है वो अंडर द कंस्ट्रक्शन है और उसका अभी मार्केट में सर्वे चल रहा है, लेकिन ये वर्किंग में है, ठीक है, प्रोजेक्ट इज वर्किंग। तो बीटा वर्जन, तो ये है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दो टाइप्स के रहते हैं, अल्फा और बीटा, ओके। सो बीटा टेस्टिंग में सिर्फ एंड यूजर वर्क करता है, और अल्फा में कैसे टेस्टर भी यूज करते हैं और टेस्ट कर सकता है और यूजर भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन बीटा वर्जन में सिर्फ ओनली एंड यूजर, मतलब मैं हम कोई भी एनी एंड, हाँ कस्टमर, यस, एंड यूजर मतलब कस्टमर, ओके, तो टेस्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हाई लेवल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में applicable to the high level of the testing, so mainly applicable to the low level of the testing, lower level of the testing, that is what unit testing and integration testing, unit testing and integration, then system testing comes under black box testing, okay। then what are the responsibilities for the black box testing, generally independent software tester, ओके, क्योंकि जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक मॉड्यूल दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, दूसरे को दूसरा दिया जाता है, लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दैट इज इन्वॉल्व, ओके, हु आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, किसका काम है, टेस्टर का काम है, ओके, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टर, इंडिपेंडेंट, ओके। मतलब अब देखो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 4-5 डेवलपर का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए भी 4-5 टेस्टर का यूज़ होता है,
लेकिन वो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, लेकिन सारे डेवलपर एक ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके, लेकिन इसमें कैसा वर्क दिया जाता है कि आपको ये मॉड्यूल बनाना है, उसके बाद ये मॉड्यूल बनाना है, ऐसे। तो फिर उसको मर्ज करते हैं, लेकिन टेस्टर को, जो इंडिपेंडेंट टेस्टर है, इनको हर एक को एक एक मॉड्यूल दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। ओके, हम्म, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वाइट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर जा ही नहीं रहे। ओके, सो प्रोग्रामिंग नॉलेज नॉलेज जरूरी है वाइट बॉक्स टेस्टर को। जो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं उनको प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। नो, हियर इज द रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर डूइंग द इंटरनल लॉजिक कोड नॉलेज, सो दे आर डूइंग द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो कोडिंग नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब पता होना चाहिए। बेसिक टेस्ट केसेस का नॉलेज, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए हमको टेस्ट केस डिज़ाइन करना है। और फॉर हियर टेस्ट केसेस के लिए हमको डिटेल डिज़ाइनिंग चाहिए। जैसे ये यूज़र है, यूज़र क्या करेगा, डेटा एंटर करेगा। ओके, देन एंटर होने के बाद वैलिड डेटा अगर एंटर किया है तो उसका होम पेज दिखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं यूज केस डायग्राम। ओके, फ्लो डायग्राम पता है तो ही हम डेवलपर जो है उसके हिसाब से कोड लिखेंगे। अगर फ्लो डायग्राम पता नहीं तो कैसे कोड लिखेंगे। तो हमको टेस्ट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना है ना, रिक्वायरमेंट एफ होना ना हमारे पास। हाँ, और यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन होना, मतलब एफ होना, FRD, है ना। रिक्वायर नहीं, मतलब एस होना, SRS, हाँ। एस आर डी होना। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। और यहाँ हाँ, पे हमको फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना। ओके, दिस इज अ right. डिफरेंस, या दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो दिस इज अ जनरल टर्म। सो अभी तक हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग टर्म लाया, देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लाया। उसके बाद हमने हम्म, जो लेवल्स देखे वाइट बॉक्स में, जो है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। और जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी आए तो हमने ऐसा कहा कि यूनिट टेस्टिंग छोड़ के इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के इन्वॉल्व होता है। ओके, इतने हमने टर्म क्लियर किए हैं। तो हमको कुछ नहीं पता, सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है, इसको जिस कौन करता है कि ऐसे टाइप्स के टेस्टर करते हैं जिनको कोडिंग का नॉलेज होता है। ओके, कोडिंग का जिनको नॉलेज होता है, इंटरनल डिजाइनिंग का नॉलेज होता है, वो टेस्टर को हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं और जनरली डेवलपर होते हैं वो। ओके, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ओनली टेस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी क्लियर किया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज एच डी एल सी। तो एच डी एल सी का मीनिंग होता है, 2 मिनट बैक लेना ना, हाँ, रेफरेंस का। ये पूछते हैं क्या डिफरेंस, नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, क्राइटेरिया? नहीं ये नहीं पूछते। ये आपको इतना पूछते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, कितना एक्सप्लेन करेंगे आप, ये किया 2 लाइन बस हो गया। हम्म। उनको मीनिंग होना बस। ये इसलिए पूछते हैं कि आपको जो टर्म्स पता है कि नहीं, इसके बारे में कुछ है कि नहीं, आइडिया है, मतलब कभी नॉलेज लिया है कि नहीं इसके बारे में। वो ऐसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपको टेस्टिंग पता है क्या, फिर वाइट बॉक्स का मतलब क्या होता है पता है क्या, ऐसे स्ट्रक्चर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछेंगे वो, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा। वर्ड यूज़ करके। तो जो वर्ड्स आपके माइंड में है तो आप समझ जाते हैं कि नहीं, इनको कुछ ना कुछ पता है। तो फिर वो बाकी का क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं आगे के। नहीं तो अगर इसमें अगर हमने बराबर आंसर नहीं दिए तो फिर वो, उनको पता चल जाता है कि फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं आगे के। इसलिए स्टार्टिंग के जो 5 मिनट रहते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हम्म। इम्प्रेशन के लिए। ओके, और जो है आपको पहले बताया, जैसे अगर आपको जैसे आपको डेप्यूट करते प्रोजेक्ट पे तो आपको ये सब नहीं बताया जाएगा, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स या वाइट बॉक्स, ये कब करते, कौन करता है, ये नहीं बताया जाएगा आपको। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा। तो उस टाइम पे कैसे पकड़ में आते हैं, इसीलिए वो ये कंसिडर करते, जब तक हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब ये कंसिडर करते कि आपने इंटरव्यू दिया है और आपने फिर आपको नॉलेज है इस चीज़ का, इसलिए तो आप वहाँ तक आए हैं, है ना, इतना नॉलेज हम्म। लेके आए हैं, तो उतना कंसिडर करते हैं। तो केटी में सिर्फ प्रोजेक्ट का नॉलेज देते हैं, ये नहीं करते। लेकिन अगर फ्रेशर्स जैसे इंटरव्यू ट्रायल लेते हैं कंपनी में, तो जिनको उनको पहला जो रहता है रिटर्न्स रहता है, रिटर्न होने के बाद फिर एक नॉर्मल टेक्निकल होता है, एक दूसरा टेक्निकल होता है, फिर एक एचआर होता है। फिर हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि हमारे जो हमने इतने रिक्रूटमेंट की है, तो हमको पता चलता है। उसके बाद उनको और हम कंपनी में बुलाते हैं, उसके बाद और हम कंपनी में टेस्ट लेते हैं, टेक्निकल टेस्ट।
उससे हमको एनालिसिस होती है कि ये बंदा जो है वो कितना डेवलपमेंट में अच्छा है, कितना इसमें अच्छा है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से हमको पता चलता है कि इज़ नॉट गुड इन द डेवलपमेंट, तो थोड़ा-सा ये तो हम उसको कैसे दूसरी इसमें डाल देते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे एनालिसिस में डाल, डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में डाल देंगे उसको, यूआई डेवलपमेंट में डाल देंगे। और अगर उसमें से कुछ भी अच्छा हमको इतना ये नहीं लगा तो उनको टेस्टिंग में रखेंगे, जावा के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अच्छे तो ऑटोमेशन में डालेंगे। उससे भी नहीं तो फिर मेंटेनेंस में रख देंगे। मतलब हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसको डालना क्या है, उसके हिसाब से फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद भी हमको और टेस्ट लेते हैं कि वो अभी कैपेबल है क्या, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और नहीं तो और ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको शिफ्ट करते हैं। तो एज अ फ्रेशर के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता कि मुझे कौन सी पोस्ट मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख के रहेगा, चाहे आप डेवलपर हो या टेस्टर हो या एनीथिंग हो, तो डेटाबेस डेवलपर हो, कुछ भी रहो। ओके, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक के लिए टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर स्पेसिफिक टेस्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो एज अ फ्रेशर तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने एज अ फ्रेशर बोले कि मुझे टेस्टिंग का नॉलेज है तो आपको टेस्टिंग के बारे में फ्रेशर क्वेश्चन पूछेंगे, दैट्स इट। और वो आप दे देंगे आंसर। तो फिर ज़रूर नहीं कि आपको टेस्टिंग में डालेंगे करके, फिर वो सोच सकते हैं, तो ऑटोमेशन भी रख सकते हैं। वो वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है और परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो वही उसमें जाएंगे तो टेस्टिंग में सिर्फ टेस्टिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस दिखाएंगे, टेस्टिंग में जाएंगे सिर्फ टेस्टिंग ही फोकस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एचडीएलसी। So every software company they create a software, है ना। सो सॉफ्टवेयर कंपनी का मेन प्रोडक्शन का काम क्या रहता है कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन क्रिएट करके दे। किसके लिए? जिनके बड़े बड़े बिजनेस है उनको ऑटोमेट करने के लिए। जिनके बिजनेस बहुत बड़े हैं, जैसे बैंकिंग बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है जिनके, उनको एप्लीकेशंस बना के दो। ये सॉफ्टवेयर कंपनी का काम, मतलब बिजनेस के सॉल्यूशंस दो। तो अब ये जो एप्लीकेशंस है, ये सॉफ्टवेयर है, ये बनते कैसे हैं? दे फॉलो द सम स्टैंडर्ड। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं एस डी एल सी। ओके, दैट इज फॉलोज द वन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एवरीथिंग। ओके, दैट इज एस डी एल सी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। They are the different model of the software development life cycle. Okay, so SDLC is the process that follow for the software project within the software organization. So any software company that follows the SDLC, there are the different SDLC process as per the requirement। जैसे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर जो बनाने, एप्लीकेशन बनाने, उसके हिसाब से कॉस्ट भी मैटर करता है, कितना टाइम में बना के देना वो भी मैटर करता है। एवरी फैक्टर इज मैटर। और उसके हिसाब से फिर हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे। कभी कभी क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो उनके हिसाब से फिर यही मॉडल हमको चूज़ करना पड़ेगा डेवलप करने के लिए। तो कौन से डिफरेंट मॉडल है हम देखेंगे। ओके, सो एस डी एल सी इज जस्ट प्रोसेस विच फॉलो टू डेवलप द प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करो एस डी एल सी के, जो एज पर तो उसके नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड से फॉलो होता है, सब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्लान्स, what contains the plan that describing how to develop, maintain, replace or alter or enhance the specific software। okay, how to develop the सॉफ्टवेयर दैट डिस्क्राइब। ओके, एसडीएलसी जो एक प्रोसेस है, तो हम ये सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है इस प्रोसेस में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, हम देखेंगे उसमें क्या क्या आता है फेजेस। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एसडीएमएल प्रोसेस में कि डेवलपमेंट कैसे होंगी सॉफ्टवेयर की, how to develop, then how we will be maintain that one, then how will be replace if the new things is arrive, how will be alter मतलब कुछ changes कर सकते हैं। okay, how to enhance the software, specific software, how we can improve। okay, this process in required, so it's required some standard documentation, perfect documentation। okay, so this is just the life cycle of the software development। so the life cycle defines the methodology for improving the quality of the software and the overall development of the process। So SDLC stand for software। हाँ, वॉइस वॉइस ब्रेक हुआ था थर्ड पॉइंट पे। Okay, so SDLC is software development life cycle। Software development life cycle। Every software industry follows the SDLC model to create a software project। ओके, एच डी एल सी प्रोसेस है एक, वो फॉलो करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है, दैट इज अवेलेबल इन दैट डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंटेशन। एक प्लान होता है वहाँ पे,
तो उसमें कैसे डेवलप करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे अगर रिप्लेस करना है, या फिर अल्टर करेंगे मतलब कुछ चेंजेस करना है, या फिर हम सॉफ्टवेयर के इन्हांस कैसे करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। सो द लाइफ साइकिल डिफाइंस द मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पे एक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं हम फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो जो भी हमारी ये डेवलपमेंट है इसको प्रोसेस करने के लिए इम्प्रूव कैसे करेंगे हम, उसी को हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस इज व्हाट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो जैसे हमारे रिज्यूमे है, रिज्यूमे भी हमको लिखना पड़ता है कि वी आर undergoes the SDLC process of the company. Okay, SDLC प्रोसेस, SDLC और STLC, ये वर्ड्स अपने रिज्यूमे में आने चाहिए और हर एक के रिज्यूमे में ये वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इन दैट फेज डेवलपमेंट होता है, एनालिसिस होता है, डिजाइनिंग होती है, टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग में हम आते हैं और टेस्टिंग के भी एक फेज होता है जिसमें है STLC मीन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, STLC इज द पार्ट ऑफ SDLC। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी डेवलप करना है तो आप उसमें एनालिसिस गैदरिंग करेंगे, पहले एनालिसिस रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में भी हम लाइफ साइकिल आती है जिसका नाम है STLC मीन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। फिर वो टेस्टिंग भी कैसे करेंगे उसकी भी एक मेथोडोलॉजी है, तो हम वो पढ़ेंगे कि उसके भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। SDLC किस लिए यूज होता है? टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। Okay, every software company, every that follows the SDLC, जितने भी कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो विदाउट SDLC चलती नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर, लेंसकार्ट का lenskart.com है, इट्स आल्सो द सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग इज द सॉफ्टवेयर। दे आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, ओके, पर्टिकुलर SDLC मॉडल। इसी SDLC मॉडल से वो प्रोजेक्ट बनते हैं। अब ये जो SDLC मॉडल्स है वो कितने हैं, कौन से हैं, और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, तो फिर कंपनी उसके हिसाब से वो वही मॉडल पे वर्क करेंगे। ओके, सो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड एवरी SDLC मॉडल, जितने भी SDLC के मॉडल्स है या मेथोडोलॉजी है, तो उसमें कितने फेजेस आते हैं, दैट विल बी द कॉमन फेजेस। ओके, ऑल दिस जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी नया थिंक कुछ डेवलप करना है तो उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मैं कॉलेज में जाके वर्कशॉप कंडक्ट करूँ और मैं अपना कंपनी का नाम बताऊँ और उनको इम्प्रूवमेंट करूँ और उनको कैसे इन्फ्लुएंस करूँ हर चीज़ के लिए। तो दैट इज़ वाई वन प्रोजेक्ट हम ऐसे बोलेंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा। तो मुझे फोकस करना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, उनके कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और मुझे बोलना क्या है वर्कशॉप में, ये पूरा मुझे गैदरिंग करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब इसी के जैसा मैं सोचता हूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर हम ये सोचूंगा कि मैं किसके लिए बनाऊँ, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या लगेंगे, तो उनके ये आइटम रह सकते हैं, तो पहले उनके ये आइटम भी कलेक्ट करना है, तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा मुझे, जिनके जैसे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिलिंग सॉफ्टवेयर वेरियस टाइप्स के रहते हैं। अब मैं बिलिंग सॉफ्टवेयर सोचूंगा कि रेस्टोरेंट के लिए, अब रेस्टोरेंट कौन सा टाइप का है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड है, उसमें मेनू आइटम्स कितने रहने वाले हैं, उसकी कॉस्ट कितनी रहेंगी, फिर उसको हम चेक करेंगे। दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द SDLC। देन एनालिसिस। अब जो रिक्वायरमेंट लेने वाला एक बंदा रहेगा, उसके बाद एनालिसिस करेगा उसके ऊपर। तो अब एनालिसिस करना मतलब क्या, तो ओवरऑल डिस्कशन करना। अब जो रिक्वायरमेंट लिया है, अब ये रिक्वायरमेंट में हम कितने दिन में कितने लोग लगेंगे इसको बनाने के लिए, कितना टाइम जाएगा, क्या क्या वर्क करना पड़ेगा उसमें, टाइम वगैरह एवरीथिंग। सो उसमें हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कितना जाएगा, टाइम कितना जाएगा, क्या रिसोर्सेस लगेंगे मुझे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट वन। एंड ये जो एनालिसिस है बिजनेस, द BRS, ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, सो दैट BRS रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग। और ये वर्क कौन करता है, बिजनेस एनालिस्ट। ओके, बिजनेस एनालिस्ट बंदा जाएगा क्लाइंट के पास और उसमें रिक्वायरमेंट लाएगा,
और रिक्वायरमेंट लाने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जो एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है बीआरएस टाइप में, और बीआरएस में वो रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब उनके क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से वो बिजनेस रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखेगा। ओके, फिर जो प्रोजेक्ट बीआरएस आने के बाद हम जो टीम है प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसको एनालिस करेगा, चेक करेगा कि इसको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेज इज डिज़ाइन। अब उसमें डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, फ्रंट एंड कैसा रहेगा उसका। ओके, सो अभी रिक्वायरमेंट तो ला ली, तो पहला पेज कैसा रहेगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट पेज कैसा रहेगा, उसके बाद दिखेंगे में कैसा दिखेगा। सो दैट इज ओवरऑल द डिज़ाइनिंग। और फ्लो डायग्राम कैसे रहेगा, क्योंकि कैसा है कि डेवलपर के लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मिलता है। ओके, और वो बार बार कस्टमर को फ़ोन नहीं लगाता है कि अरे यार ये कैसा करूँ, ये जो डिज़ाइन किया मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया उसमें ये डालूँ क्या वो डालूँ क्या, ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन के आता है। और वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, वो उससे पता चलता है कि मुझे एक्चुअली डेवलपर को करना क्या है। ओके, कैसे वर्क करे और फील्ड कैसे रखनी है, साइज़ कितनी रहे, सब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। और फ्लो कैसा जाएगा, यहाँ से क्लिक होने के बाद उधर से कौन सा फ्लो जाएंगे, इधर से दूसरे मॉड्यूल पे कैसे जंप करेगा, वो सब फ्लो वहाँ पे रहता है। वही एसआरएस डॉक्यूमेंट रहता है। दैट इज व्हाट एसआरएस डॉक्यूमेंट। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। ऑलरेडी एवरीथिंग इज अवेलेबल, फ्लो डायग्राम्स आर अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो डेवलपर को पता है कि मुझे कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें फ्लो रहेगा। ये मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। ओके, वर्क कैसे करना है। सो डॉक्यूमेंट टाइप, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर दे प्रोजेक्ट का व्यू, एग्जिस्टिंग प्रोपोज सिस्टम ऐसे बनानी है हमको, ये मॉड्यूल चाहिए। ओके, सर्चिंग कैपेबिलिटी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। देन नीड फॉर द सिस्टम एडवांटेजेस, उसके बाद हम ये लॉगिन होने चाहिए, सीईओ इनका लॉगिन होना चाहिए, मैनेजर लॉगिन होना चाहिए, एजेंट लॉगिन होना चाहिए। से सब कुछ अवेलेबिलिटी हमारे पास रहती है। सो डेवलपर उसके हिसाब से वर्क करता है और डेवलप करता है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीआरडी डॉक्यूमेंट, बीआरडी था ना वो? नहीं, वो एसआरएस है। एसआरएस था क्या? बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग है, वो बिजनेस एनालिस्ट के पास रहता है। ओके, सो डिज़ाइनिंग मतलब हम मॉडल कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, फ्रंट एंड दिखेगा कैसे एंड यूज़र को। ठीक है, अब ये डिज़ाइनिंग जो पार्ट होता है तो ये यूएक्स यूआई डेवलपर करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे सेकंड या थर्ड वेब डिज़ाइनिंग का इंटर्नशिप का, तो उसमें फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का वर्क क्या रहता है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइनिंग है फ्रंट एंड जो हमको दिख रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इमेजेस दिख रही है। तो ये पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर प्लेस किया है ना। यहाँ पे ये इमेजेस दिख रही है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये थोड़ा फोकस हो रहा है ना। तो ये जो काम है ये है फ्रंट एंड डिज़ाइन का। और ये अगर इनका फ्रंट एंड डिज़ाइन का आपको कोड देखना है तो आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड फ्रंट एंड इज डिज़ाइन इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है सारा। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज HTML CSS का होना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज, मतलब इतना नॉलेज नहीं कि हमको इतना कोड मतलब डिज़ाइन करना है, इतना नॉलेज नहीं होना। ओके, सो बेसिक नॉलेज। तो ये यूआई डेवलपर है। अब यूआई डेवलपर ने किया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टीवी, और टीवी के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होता है कि क्वेरी फायर हो गई है और टीवी के बारे में सर्च हो गया। तो इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। ओके, ये यूआई यूएक्स मतलब स्टैटिक, और ये बन गया डायनामिक। मतलब जब भी मैंने लिखा हो तो डेटाबेस के क्वेरी में डेटाबेस के साथ वो सर्च किया और मुझे यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे मुझे आइटम डिस्प्ले हो गया। ये दिस इज द डायनामिक थिंकिंग। और इसके लिए जो जिसने कोड लिखा है वो है डेवलपर, इसको बोलते हैं हम कोडिंग। ओके, सो दिस इज द कोडिंग। मतलब जैसे मैं यहाँ पे टीवी सर्च करूँ तो मुझे टीवी डिस्प्ले होने चाहिए, विच आर ऑल द टीवीज आर अवेलेबल इन माई सिस्टम। जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसमें पूरे टीवी के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो मुझे यहाँ पे टीवी डिस्प्ले होनी चाहिए। ये मेरा एम है, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। ये हमने टेस्ट किया। तो हमको हम
को अवेयरनेस है क्या कि जो टीवी आया है तो टीवी कैसे आया है, वो उसने डेवलपर ने ऐसा कौन सा लॉजिक लिखा होगा तो सारे डेटाबेस के टीवी के फोटोज मुझे डिस्प्ले दिया है, उससे हमको कुछ लेन देन नहीं है। ओके, ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब मैं टीवी लिखूँ तो मुझे टीवी की इमेजेस यहाँ पे दिखनी चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, दिस इज अवर टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, सो ये फ्रंट एंड है। और जो हमने बिजनेस लॉजिक जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस लॉजिक। तो आपको यूआई यूएक्स का जस्ट बेसिक नॉलेज भी थोड़ा रहा तो भी चलता, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एचटीएमएल सीएसएस। ओके, यू जस्ट अंडरस्टैंड। सो दिस इज यूआई डिजाइन। ओके, सो मैंने ये डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कुछ लिंक ही नहीं दिया, मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा, तो ये स्टैटिक दिखेगा ऑटोमेटिक, ओनली स्टैटिक। ओके, दिस विल लुक लाइक एज अ स्टैटिक। सो दिस इज व्हाट डिजाइनिंग। तो आप हर एक फॉर्म पेजेस कैसे डिजाइन कर रहे हो। सो डिजाइनिंग रिक्वायर्ड होने के बाद जैसे हमारा डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उस डिजाइनिंग को प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग द कोडिंग। ठीक है, डिजाइनिंग होने के बाद उसको कोडिंग करेंगे। जैसे हमने ये डिज़ाइन किया तो इसमें मैंने एक यूज़र नेम की फील्ड डिज़ाइन की, पासवर्ड फील्ड डिज़ाइन किया और यहाँ पे लिखा मैंने सबमिट बटन। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ भी डालो, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करो, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। ओके, जब तक आप यहाँ पे एक लॉजिक नहीं लिखते हो बटन के ऊपर, है ना। बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, ये अगर जब तक अभी आप लॉजिक नहीं लिखते हो तब तक ये वर्क नहीं करेगा कुछ भी। तो जो लॉजिक लिखने का काम है वो कौन करता है, कोडिंग, कोडर मीन्स डेवलपर। कि जब भी आप यहाँ पे इनपुट डालेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम सेंड करेंगे और वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, तो डेटाबेस में चला जाएगा। तो ये इसका जो लॉजिक लिखा है इसको बोलते हैं हम कोडिंग। ओके, सो जैसे हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो गई फिर हम कोडिंग करते हैं, और जैसी कोडिंग कंप्लीट हो गई है उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, एंड देन वी आर, इफ वी हैव फाउंड एनी डिफेक्ट एनी इशू, देन उसको हम रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेजेस इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे हमको कुछ भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाना है, एप्लीकेशन गिरना है सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहली फेज होती है कि आप रिक्वायरमेंट लीजिए, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग, देन एनालिसिस दैट वन। ओके, कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, कौन सी कोडिंग यूज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता है उसके ऊपर। तो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ लोग कितने लगेंगे, देन स्टार्टेड विद द डिजाइनिंग, देन स्टार्ट विद द कोडिंग, देन टेस्टिंग। ओके, आफ्टर द कोडिंग देन द application is get tested by the tester, then if there any implementation is required then go for the implementation, then उसके बाद support and maintenance। so जैसे कुछ एप्लीकेशन डेवलप करके दी है, जैसे जस्ट डायल है, और उसमें हम कस्टमर केयर कॉल करता है। ओके, उसको हम सपोर्ट देते हैं लाइक दिस वे आल्सो। तो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, है ना, मतलब कुछ सपोर्ट्स देते हैं उसका को। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे उसमें वर्क नहीं हो रही है, तो हम उसको कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं जो बिलोंग करते हैं उसी एप्लीकेशन को, फिर वो आपको सपोर्ट देते हैं। तो टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, यू कैन मेंटेन दैट एप्लीकेशन। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो जो भी यहाँ पे ये होते हैं ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ट्रांजैक्शन में कुछ इश्यू आते हैं तो हम मेल करते हैं। ओके, और फिर वो बताते हैं कि आपके अब जो एप्लीकेशन में ये वर्क नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ये कौन बताता है, कि जो डेवलपर है उसमें जो प्रोडक्ट ओनर है या फिर जिनकी एप्लीकेशन है वो बताता है फिर, और कंपनी को ये बताता है कि ये वर्क नहीं हो रहा है, तो फिर कंपनी उसके ऊपर और मेंटेन करके वर्क करती है। ठीक है, सो दैट इज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, सो दैट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया मतलब आपको दे दिया ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लाइफ टाइम कंपनी के राइट्स में रहते हैं, और लाइफ टाइम वो जो जिस कंपनी से सॉफ्टवेयर बनाया है वो कंपनी उनको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, उसका वो कॉस्ट लेते हैं पर ईयर। ठीक है, पर ईयर का कॉस्ट रहता है। ठीक है, हर एक एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल कितने भी साल लगते हैं, लेकिन उसका पूरा मेंटेनेंस वही सॉफ्टवेयर कंपनी मेंटेन करती है। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उनको जैसे फ्लिपकार्ट ही मान लो, फ्लिपकार्ट के लिए ही जिन कंपनी से बना के दिया है, फ्लिपकार्ट कंपनी से बनाना है, तो भी उसमें डेवलपर बैठ के रहते हैं सर्वर साइड में, जो भी इशू आ गए उसको सॉल्व करते रहेंगे। कसम, कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं एट अ टाइम फट से, तो सर्वर डाउन होता है, तो वो रिजॉल्व करने के लिए भी वहाँ पे डेवलपर बैठ के रहते हैं एट अ टाइम। वो
ट्राई टू सॉल्व दैट वन। ओके, तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है एसडीएलसी में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये चाहिए से याद रखने का। रिक्वायर्ड एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन बोलो नहीं बोलो चल जाता, सपोर्ट मेंटेनेंस से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये लास्ट के 2 वर्ड आना चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग ये मैंडेटरी है, और उसके पहले रिक्वायरमेंट। ओके, हमेशा बोलते समय जो एच डी एल सी के जो मेन फेजेस है वो 4 है। एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये मेन 4 फेज है। और ये एनालिसिस करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आपको रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है, टेस्टिंग के क्या है, मुझे क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है क्या नहीं, वो रिक्वायरमेंट तो लेना पड़ेगा ना, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है भाई। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं टेस्ट करूंगा ना, कि मुझे कैसी है, तो मुझे 8 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर ऐसा चाहिए, तो ये इधर चाहिए वो उधर चाहिए, उसके हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट कैप्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then analysis, designing, coding, testing and support maintenance that is required implementation something। तो ये मेन 4 फेजेस ये है, और रिक्वायरमेंट और ये याद रखने का। जब भी हम बोलेंगे एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, से ऊपर बोलने का द रिक्वायरमेंट, स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। ओके, सो कभी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द एसडीएलसी प्रोसेस, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज एसडीएलसी। तो बोलने का यस, सो आई नो द एसडीएलसी। सो एसडीएलसी इज द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। देन आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू नो व्हाट आर द फेजेस आर अवेलेबल इन द एसडीएलसी। सो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट बनता है, तो सबसे पहले द फेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। या आप इसको एक वर्ड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ऐसे भी आप बोल सकते हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन कोडिंग, टेस्टिंग, एक ही फ्लो में बताना है। एनालिसिस, डिजाइनिंग, एडीसी, ठीक है, एडीसी में रखना है वो। एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, एंड इफ देयर रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन देन वी आर गोइंग टू डू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर इस एसडीएलसी के प्रोसेस में आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, इस इसमें हो, इस फेज में आते हो आप। ओके, एज अ टेस्टर इन विच फेज यू आर इन्वॉल्व, द टेस्टिंग फेज। ओके, क्योंकि एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कोई दूसरा करता है, इसमें भी टीम रहती है, एनालिसिस भी कोई डिफरेंट करते हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग कोई अलग करते हैं, कोडिंग कोई अलग टीम रहती है, टेस्टिंग टीम अलग रहती है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन भी ऑल्सो, वर्किंग सपोर्ट कोई देने वाले अलग रहते हैं। ओके, सो इस टेस्टिंग में भी आती है एस टी एल सी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जो भी कंपलसरी हमको एज अ टेस्टर को पता होना चाहिए। ओके, और एस डी एल सी प्रोसेस में हाँ, डिटेल में क्या होता है ये हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए, एक्सप्लेन। ओके, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एस डी एल सी प्रोसेस में होता क्या है। रिक्वायरमेंट होता है, गैदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कब कैसे कैसे बनाना है, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, वगैरह वगैरह इतना। फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, और कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और फिर उसको टेस्टिंग करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अगर कोई फाउंड होता है तो। ओके, इशू, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है एज अ टेस्टर को। दे विल जज यू, डू यू नो द एस डी एल सी प्रोसेस। क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी लो, विदाउट एस डी एल सी चलता ही नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। ओके, एक कौन से तो भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी एक लाइफ साइकिल है जिसमें प्लानिंग, ओके, रिक्वायरमेंट मीन्स प्लानिंग। ओके, प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, सर्वर में डिप्लॉय करना। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं हम, करना क्या है हमको, प्लानिंग से रिक्वायरमेंट आ गई है हमारे पास, तो हमको करना क्या है, तो फिर हम कैसे करेंगे। करना क्या है, वो रिक्वायरमेंट ले लिया कि हमको ये एप्लीकेशन बनानी है, तो प्लानिंग करेंगे उसके ऊपर हम कितना, तो हम ये जो एप्लीकेशन है क्लाइंट को कब दे सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है, तो उसमें हम डिज़ाइन करेंगे कि ये पार्ट के लिए कितना टाइम लगेंगे, ये पार्ट के लिए कितना लगेगा। ठीक है, देन उसको हम डिफाइनिंग करना चालू कर देते हैं। ओके, असाइन कर लेते हैं वर्क। देन डिज़ाइनिंग चालू हो जाती है हमारी। बिल्डिंग मतलब टेस्टिंग, सॉरी, कोडिंग करना चालू कर देते हैं हम, है ना, ये डिज़ाइनिंग हो गए। देन डेवलपर बिल्डिंग दैट वन, देन द टेस्टर जो भी डेवलप बिल्ड करते जाते हैं उसको टेस्ट करते जाते हैं, कोड करते जाते हैं, हम उसको टेस्ट करते जाते हैं। और सब कंप्लीट होने के बाद
अब मान लो कि हमारा प्रोजेक्ट 2 साल 5 साल हो गया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बिल्ड हो गया और टेस्ट भी हो गया सक्सेसफुली, फिर उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करना मतलब उसको लाइव करना, ठीक है, लाइव करना। इसको हमने अभी लाइव किया, ठीक है, इसको हमने भेज दिया। ये देखो कौन सा था हमारा, वो जियो, ठीक है, अभी ये लाइव हो गया, मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो सर्वर में डिप्लॉय हो चुकी है। ओके, सो ये हैविंग द डोमेन नेम geomart.com, ठीक है, एक डोमेन नेम है, तो ये सर्वर में डिप्लॉय हो गई है और वर्क हो चुकी है, ठीक है, तो ये अभी डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉयमेंट। अब ये डिप्लॉयमेंट के बाद, क्योंकि ये बीटा वर्जन मेंशन कर दिया, समझ में आ गया कि मार्केट में चल रहा है अभी ये, ओके, अंडर द ये वर्किंग इमेज है, तो उसमें जो भी वर्जन आएंगे उसमें वर्क करेंगे, उसके बाद वो बीटा जो है वो निकल जाएगा। इसको बोलते हैं ना स्टार्टअप, स्टिल वी आर इन द स्टार्टअप, तो दिस इज इन स्टार्टअप, समझ लो कि ये स्टार्टअप में है अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे बीटा वर्जन निकल जाएगा तो फिर ये रेडी टू यूज़ रहेगा। अभी भी ये रेडी टू यूज़ ही है, लेकिन उन्होंने बीटा वर्जन इसलिए कर दिया कि हम देखते हैं रिस्पॉन्स, मार्केट का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या है फिलहाल के लिए, फिर वो डिसाइड करती है, इसलिए वो सबसे पहले फुल वर्जन देने के पहले अब बीटा वर्जन देते हैं। और ये बीटा वर्जन में जितने भी आपको ये फंक्शनलिटी दिख रहे हैं ना, तो जब ये नया वर्जन बन के आएगा ना, तो इससे ज़्यादा फंक्शनलिटी रहेंगी इसमें, बहुत सारे फंक्शन, उसको हम बोलेंगे फुल वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा लिख के नहीं रहेगा, तो आप बहुत सारे ऐप वगैरह दिखते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि बीटा बीटा वर्जन, तो अंडर द प्रोसेस, अंडर द वर्किंग चल रहा है, ऐसा समझ जाने का उसमें, मार्केट सर्वे ले रहा है करके वो। ओके, so these are the different phases are involved in the SDLC. So what is SDLC? It's a software development life cycle. Okay, Mhm. so SDLC methodology, SDLC, by using the SDLC we can create a software. Okay, so the software company use the SDLC methodology to create a software project or application. Okay, there are some different phases are available in the SDLC. Requirement analysis, designing, coding, testing, implementation. Okay, these are the different phases are involved. So where you involve as a tester, in the testing we are going to involve as a tester. Okay, so they say planning one, first stage planning requirement analysis.